بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے گاؤں کی سنسان سڑک پر میں تنہا چل رہی تھی۔ ہوا سرد تھی، بادل گرج رہے تھے اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ میں اپنے ماضی میں مگن سوچوں میں گم اپنے ماضی کے دردناک واقعات کو یاد کر رہی تھی۔ میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خلا تھا جو بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ میرے والد کی موت اور ماں کی بیماری نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس وقت میں بارش میں بھیگ رہی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ میری چھتری ہوا کے زور سے پلٹ چکی تھی اور میری چادر بھیگ چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا اس وقت وہاں پہنچنا بہت ضروری تھا جہاں کے لیے میں بغیر موسم کی پرواہ کیے نکل آئی تھی۔ اچانک میں نے ہوا میں ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی لیکن وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، عائشہ، عائشہ۔ پھر ایک لمحے کے لیے بادلوں کے پیچھے سے ایک پرچھائی نمودار ہوئی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یقیناً وہ کوئی جن ذات تھا۔ میں نے بچپن سے جن زادوں کی کہانیاں سنی تھیں لیکن انہیں کبھی حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی جگہ پر رک گئی۔ وہ جن ذات ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی جادوئی طاقت تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ہمت جتا کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ ہوں جسے تمہارے دل نے ہمیشہ تلاش کیا ہے۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں لیکن میں تمہارے دل کی آواز سن سکتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ کچھ برا کرنے آئے ہو؟ وہ ہنس کر بولا، نہیں عائشہ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنی حقیقت بتا سکوں۔ میرے دل میں کئی سوالات تھے لیکن میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس نے کہا، عائشہ، تمہاری زندگی میں جو بھی دکھ اور تکلیفیں ہیں ان کا ایک مقصد ہے۔ تمہاری روح میں ایک خاص طاقت ہے جسے تمہیں پہچاننا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی طاقت؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہ طاقت جو تمہیں دنیا کے ہر ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے، وہ طاقت جو تمہیں کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کی بات پر غور کیا۔ واقعی میری زندگی میں کئی مشکلات آئیں لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا، تمہیں اپنی اس طاقت کو پہچاننا ہوگا اور اسے دنیا کے سامنے لانا ہوگا۔ پھر وہ جن ذات آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا لیکن اس کی باتیں میرے دل میں گونجتی رہیں۔ بارش کی بوندیں اب میرے چہرے پر گر رہی تھیں لیکن میں نے اپنے دل میں ایک نئی روشنی محسوس کی۔ میری زندگی کی کہانی اب نئی سمت میں جا رہی تھی اور میں اس نئے سفر کے لیے تیار تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں 22 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرے سنہرے گھنگریالے بال اور میری نیلی آنکھیں میری خوبصورتی کا باعث ہیں، مگر کاش کہ میری قسمت بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی جیسی میں نے شکل پائی تھی۔ میری زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا جو قدرتی حسن اور سادگی کی علامت تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے سنہرے دن اپنے ماں اور باپ کے ساتھ گزارے۔ میرے والد ایک محنتی کسان تھے اور میری ماں گھر کی رونق تھی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں ہمیشہ خوشیوں کا بسیرا رہا اور میں نے اپنے والدین کی محبت میں پرورش پائی۔ میری ماں مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کہانیاں سناتی تھیں جن میں پیار، دوستی اور زندگی کے اہم سبق ہوتے تھے۔ میں نے انہی کہانیوں سے زندگی کی خوبصورتی کو جانا تھا۔ میرے والد ہمیشہ میرے لیے خواب بننے کی بات کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بڑی ہو کر کچھ بنوں، کچھ کروں جس سے نہ صرف میرا بلکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اس لیے انہوں نے ہر مشکل کا سامنا کر کے مجھے محلے سے کچھ دور ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور روزانہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اسکول چھوڑاتے۔ میں نے 5 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ یہاں تک میری زندگی بہت خوبصورت تھی لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ میری خوشیوں بھری زندگی میں ایک دن ایک سیاہ بادل چھا گیا۔ میرے والد ایک حادثے میں ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ حادثہ میرے اور میری ماں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہمارے خاندان کی خوشیاں جیسے کسی نے اچانک چھین لی۔ والد کے بغیر زندگی کی سادگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔
वालिद के जाने के बाद मेरी माँ की सेहत भी गिरती चली गई। वो हमेशा कहती थीं कि मैं ही इनकी सबसे बड़ी उम्मीद हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा अपनी ताकत और मोहब्बत का जरिया बनाया। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो था जब मेरी माँ भी बीमार हो गई और मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ी। मेरे बचपन की मासूमियत अब जिंदगी की तल्ख हकीकतों से टकरा गई थी। मैंने लोगों के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था, मदद की इल्तिजा करते हुए। मुझे अपनी इज्जत और वकार सबसे ज़्यादा अजीज थे और मैंने कभी किसी के आगे झुकने का नहीं सोचा था। कुछ लोग मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते, लेकिन मैंने हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने आप को महफूज रखा। मैं जब भी किसी दरवाजे पर दस्तक देकर कुछ पैसों का तकाजा करती तो लोग बुरी निगाहों से मुझे घूरने लगते और मुझे एक गलत लड़की समझते, मगर मैंने हमेशा अपने चेहरे के तासुरात कुछ इस तरह रखे कि लोग मुझे गलत ना समझें और मुझ पर बुरी निगाह ना डालें। कई रातें मैंने अपने आंसुओं में गुजारी, ये सोचते हुए कि मेरी ज़िंदगी कब बेहतर होगी। लेकिन हर बार जब मैंने अपनी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी, मुझे एक नई ताकत मिली। मैंने अपने दिल में एक अहद किया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने का इरादा किया, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। इस दुनिया में उन्होंने जो भी दुख सहे हैं, मैं उनका मदावा करूंगी। मेरी माँ के प्यार और वालिद के ख्वाबों ने मुझे वो मजबूती दी थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में उनकी यादें और उनके सबक मेरे साथ रहते हैं। उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना होता है। मेरे माज़ी की खूबसूरती और दर्द दोनों ने मिलकर मेरी शख्सियत को संवारा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इन लम्हों की बदौलत हूँ। मैंने ज़िंदगी की तलखियों को झील कर अपने अंदर वो ताकत पैदा की जो मुझे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं और मेरी माँ घर के काम में मसरूफ़ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, खादिम हुसैन का इंतकाल हो गया है, इनकी मैयत को कहाँ रखना है। ये सुनकर मेरी माँ के हाथ से वो गर्म चाय के कप गिर गए थे और वो एक ज़ोरदार चीख के साथ दरवाजे की तरफ लिपकी थी। वो मंजर बहुत ही दिल दहला देने वाला था। तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या रद्द-ए-अमल देना है। मैं अपनी माँ से चिमट गई और उन्हें रोने से रोकने लगी। मैं नहीं जानती थी कि इस वक्त मुझे उन्हें कैसे तसल्ली देनी है। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा गम देखा था। थोड़ी देर के बाद हमारे घर में बहुत सारे लोग जमा होना शुरू हो गए। मेरे बाबा की तदफीन के बाद कुछ औरतों ने मेरी माँ को तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते गए और रात की तारीकी फैलती गई। मेरी माँ एक दीवार के साथ टेक लगाए साकित होकर बैठी थी। उनकी आंखों से अब आंसू खुश्क होने लगे थे। मैं उनके कांधे पर सर रखकर बैठी उनसे पूछ रही थी कि अम्मा, क्या बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी माँ ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, हमें अभी जिंदा रहना है। जब तक हमारी सांसें हैं हमें इस जिंदगी को जीते रहना है और अपने हिस्से के दुख झेलने हैं। हमारी खुशियाँ शायद यहीं तक महदूद थीं। ये कहकर मेरी माँ मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनकी इतनी गहरी बातें समझने से उस वक्त कासिर थी। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें हमारी खैर खबर लेने आई। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ भी ख़त्म हो गया। घर का सारा सामान भी ख़त्म हो गया था। माँ ने मुझे कहा कि अब से तुम मेरे साथ चलोगी, हम हवेलियों में काम करके अपना पेट पालेंगे। ऐसे दुनिया हमें जीने नहीं देगी, हमें कुछ करना होगा। तब तक हम मोहल्ले वालों के आसरे पर बैठे रहेंगे और किसी की खबर भला कब तक कोई रखता है। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। माँ ने मेरे हाथ से बस्ता लिया और हमेशा के लिए उसको घर की दराज में बंद कर दिया। मेरे ख्वाबों का दिया मुझे बुझता हुआ दिखाई देने लगा था। मेरे वालिद ने मेरे मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब बुने थे वो मुझे किरची किरची होते दिखाई देने लगे। मैं समझ गई कि मेरी खुशियों का सफ़र बस यहीं तक था। मैं अपनी माँ के साथ चलती चलती उस जगह पर आ गई थी जहाँ बहुत सारे बंगले बने थे। यूँ मेरी माँ ने एक घर में काम करना शुरू किया और हमारे घर का चूल्हा फिर से जलने लगा। वक्त के साथ साथ मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है। अब मैं जवान होने लगी थी तो माँ ने मुझे घर बैठने का कहा था और घर संभालने की ताकीद की, क्योंकि अब माँ जिन घरों में काम करती थी और इस घर के मर्दों की नज़रें मुझे तीर की तरह चुभने लगी थी।
मैं अपने आप को दुपट्टे से कितना भी ढांप लेती, मगर ज़माने की नज़रें मेरे वजूद का ताक़ुब करने से बाज नहीं आती। और ये बात मेरी माँ को काट खाने को आती थी कि वो अकेले मेरी परवरिश कैसे करेंगी और ज़माने की गर्द गुबार से मुझे कैसे महफूज रखेंगी। एक दिन मैं घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने निकली। उस वक्त माँ भी काम के लिए जा चुकी थी। घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया था। मैं वो लेने दुकान तक निकल आई। मैंने जैसे ही दुकानदार के हाथ में पैसे थमाए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरे वजूद में एक अजीब सा खौफ दौड़ गया। ये दुकान हमारे ही मोहल्ले में थी और वो दुकानदार मुझे अच्छे तरीके से जानता था कि मैं एक बिन बाप की बच्ची हूँ और अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ। मैंने फौरन उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और बगैर सामान लिए वहाँ से भागती हुई घर आ गई। मैंने घर आकर दरवाज़ा बंद किया और मैं रोते हुए दरवाजे के साथ बैठती चली गई। आज मेरे साथ जो हुआ था इस बात ने मुझे इंतहाई खौफज़दा कर दिया था। और मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मैं जानती थी कि अम्मा को जब ये बात पता चलेगी तो वो भी बेहद परेशान होंगी। वो तो पहले ही मुझे ज़माने की नज़रों से बचने के बारे में तलकीन करती हैं और मैं उनकी बात सुनकर अपने पल्लू से बांध लेती। यही वजह थी कि मैं बहुत मोहतात होकर बाजार जाती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमारे मोहल्ले के ही वो लोग जो मेरे बाप के साथ बैठा करते थे और उनकी इतनी इज्जत करते थे, आज वही लोग मेरे हाथों को थामने के लिए आगे बढ़ाएंगे और मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करेंगे। मैं काफ़ी देर तक रोती रही और अपने दिल का बोझ हल्का करती रही। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अपने आंसू पोंछकर उठी तो मैंने ये हिम्मत कर ली थी कि आइंदा मैं किसी को भी अपना हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं दूंगी। आइंदा कोई बगैर इजाज़त मुझे उंगली तो लगा कर देखे। मेरे अंदर एक नफ़रत और एक हिम्मत पैदा हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अम्मा को इस बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर अम्मा को ये बात मालूम हो गई तो वो जीते जी मर जाएंगी। वो तो पहले ही मेरी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती थी और अब्बा के गुजर जाने के बाद उनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसकी बदौलत उन्हें बहुत टेंशन रहती और बीपी हाई कर लेती थी। इसलिए तो मैंने यही सोचा था कि अम्मा को इस बात के बारे में नहीं बताऊंगी। शाम को जब अम्मा घर पर आई तो तभी थके हारे चेहरे के साथ मेरी खैरियत मालूम की तो मेरा दिल भर आया। लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा और अम्मा से कहा कि अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ये कहते हुए मैं फौरन अम्मा के लिए गिलास में पानी डालकर ले आई, जिसे पीकर अम्मा ने शुक्र अदा किया और कहा, बेगम साहिबा ने खाने के लिए कुछ सामान दिया है, तुम वो निकालो और खाना खा लो। मैंने वहीं पर खा लिया था। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैं सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। अक्सर बेगम साहिबा अपना बचा हुआ खाना भेज देती थी जो मैं और अम्मा खा लेते थे। बहुत कम इस बात की ज़रूरत पेश आती थी कि हमें घर पर कुछ पकाना पड़ता। अम्मा वहीं से खाना ले आती थी, इसीलिए तो मैंने अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया था। यूँ तो अम्मा मुझे मना करती थी कि तुम अभी खाना ना बनाया करो, छोटी हो कहीं हाथ वगैरह ना जला लेना। लेकिन मैं उन्हें समझाती कि आप सारा दिन तो काम करके आती हैं और फिर घर आकर खाना भी बनाए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। यही वजह थी कि मैं अम्मा के आने से पहले कोशिश करती कि कुछ ना कुछ बना लूं। लेकिन आज उस दुकानदार की हरकत ने मेरा दिल इतना बुरा कर दिया था कि मुझसे कुछ बनाया ही नहीं गया। इसलिए जो खाना अम्मा लेकर आई मैंने बड़ी रग़बत से वही खाना खा लिया और सोने के लिए लेट गई। अम्मा भी बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। सारा दिन वहाँ के काम काज करके आती तो शाम को इतनी थकी होती कि उनसे दूसरी बात नहीं होती थी। हम सारे महीने की मेहनत के बाद जो चंद हजार हमारे हाथ में आते थे, इसी से ही हमारा गुजारा चलता था। हालांकि मैं अम्मा को कई बार कह चुकी थी कि मुझे भी अपने साथ ले जाया करें, इस तरह आपका हाथ बटाया जाएगा। लेकिन अम्मा यही कहती थीं कि तुम घर पर ही रहो, अगर मैं अभी से तुम्हें काम पर डाल दूंगी तो सारी जिंदगी काम करती रहोगी। तुम्हारे बाप ने तो कभी मुझे काम करने दिया ही नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद इस जालिम पेट ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अम्मा ये कहते हुए रो देती तो मैं अम्मा को अपने छोटे छोटे हाथों से चुप करवाती और उनके आंसू पोंछती। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अम्मा को पहले से ज़्यादा मेरी फिक्र रहने लगी थी और मुझे अकेले छोड़ते हुए घबराती और कहने लगती, आयशा दुनिया बहुत जालिम है, और जबकि उन्हें पता भी है कि इस घर में 2 कमज़ोर औरतें तन्हा रहती हैं। मैं जब तक तुम्हें अपने घर बार का ना कर दूं, मेरे दिल को सुकून नहीं होगा।
अम्मा अक्सर मुझे ये कहती तो मैं उन्हें तसल्ली देती कि ऐसा मत सोचें, मैं बिल्कुल अपना ख्याल रखूंगी और किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अम्मा जानती थीं कि मैं ऐसा ही करती हूँ, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती हूँ, फिर लाख कोई खटखटाए मैं नहीं खोलती थी, सिवाय एक शख्सियत की। वो हमारे मोहल्ले की बुआ जान थी। बुआ जान तब से हमारे घर आती थी जब अब्बा जिंदा थे। वो हमेशा मुझे और अम्मा को बहुत मोहब्बत देती और अक्सर वो ऐसी बात करती कि मैं और अम्मा हैरानी से सुनते रहते। बुआ की मोहब्बत हमारे घराने के लिए बेमिसाल थी। अब्बा के गुजरने के बाद भी उन्होंने अम्मा की इद्दत तक उनका बहुत साथ दिया और अक्सर वो घर पर आ जाती और अम्मा के कई काम निपटा जाती। अम्मा उनकी बहुत मशगूल रहती। अब भी ऐसा ही था। अम्मा के जाने के बाद वो कभी कभार मेरी खैरियत मालूम करने के लिए ज़रूर आती। अब वो बूढ़ी हो रही थी और अब तो उनसे चला भी नहीं जाता था। हालांकि उनका घर तो हमारी गली में ही था, लेकिन 5-6 घर छोड़कर और उनसे अब घर से निकलना मुहाल हो रहा था। यही वजह थी कि वो 2-3 दिन के बाद ही चक्कर लगा पाती और मैं भी जैसे उनकी मुंतज़िर होती। उनकी आवाज़ सुनते ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल देती और भाग कर उनके सीने से लगती। अम्मा ने जो बातें मुझे समझाई थी, बुआ ने तो जैसे घोल कर पिला दी थी। मैं बुआ के साथ हर बात कर देती थी। उस दिन भी जब वो आई तो मैंने उन्हें उस दुकानदार की हरकत के बारे में बताया था। तभी बुआ ने मुझे मना किया था कि अपनी माँ को मत बताना, वो तो जीते जी मर जाएगी, और मैंने ऐसा ही किया था। बुआ के कहने पर ही अब मैं दुकान से सौदा वगैरह लेने नहीं जाती थी, और जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी वो खुद ही मुझे सौदा ला देती थी, जबकि अम्मा इस मामले में बुआ की बहुत मशगूल रहती, क्योंकि उनका कहना था कि अगर बुआ ना होती तो हमारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती। अब मैं 17 बरस की हो चुकी थी। अम्मा को अब मेरी शादी की फिक्र रहने लगी थी। उन्होंने इर्द गिर्द मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया था, और बुआ को तो ख़ास तौर पर। अम्मा ने कहा था कि आयशा के लिए ढंग का रिश्ता देखें, मुझे जल्द इसके हाथ पीले करने हैं। मैंने अम्मा को मना भी किया, लेकिन वो पास नहीं आई। अम्मा की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुसलसल काम, परेशानी और घर की पतली हालत में उनकी अपनी हालत बहुत ख़राब करती थी, और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के और सर के ऊपर सफ़ेद बाल उनकी अंदरूनी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रहे थे। मैं हद्दुल इम्कान अम्मा को समझाती कि अब वो ये काम छोड़ दें और मुझे काम पर जाने दिया करें, लेकिन वो इस बात के लिए रजामंद नहीं होती। उनके दिल में अब तक बचपन के इस वाक़े का डर बैठा था। जब एक बार मैं अम्मा के साथ जिद करके काम पर चली गई थी, तब मैं सिर्फ 8 बरस की थी। काम काज के दौरान अम्मा को ध्यान नहीं रहा तो मैं खेलते खेलते बड़े साहब के कमरे में आ गई, और फिर बड़े साहब ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। अम्मा को जब तक इस बात का एहसास हुआ, अम्मा भागी आई और मुझे ढूंढती रही, चीखने लगी। और फिर जब मैं बड़े साहब के कमरे से बरामद हुई तो अम्मा को जैसे सुकून का सांस आया, लेकिन मैं रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि साहब गंदे हैं, साहब बहुत गंदे हैं। और फिर अम्मा ने जब इस बात का नोटिस लेते हुए मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर अम्मा सन्नाटे में आ गई थी और एकदम मुझे अपने साथ भींच लिया और रोने लगी। अम्मा के इस रोने में बड़ा कर्ब था, बहुत शिद्दत थी। उस दिन के बाद से अम्मा ने वो काम छोड़ दिया था और वो दूसरी जगह पर काम ढूंढ लिया था, लेकिन अम्मा के दिल से वो खौफ आज भी नहीं जा सका था। यही वजह थी कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाती थी, लेकिन अब काम की ज़्यादती की वजह से अम्मा की गिरती हुई सेहत ने मुझे काफ़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया था। और फिर एक दिन तो हद हो गई। अम्मा अभी काम से वापस आई ही थी और आज उनकी तबीयत पहले की निस्बत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि उनके चेहरे से ही उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। अम्मा आते ही बिस्तर पर लेट गई। आज तो ना ही उन्होंने मुझे खाने का कहा और ना ही कोई बात की। मैं बेचैन हो गई और अम्मा के पास चली गई। अम्मा क्या हुआ आपको, तबीयत तो ठीक है? मैंने अम्मा से बड़ी मोहब्बत से पूछते हुए उनके हाथ को थामा तो मुझे जैसे एकदम करंट लगा। अम्मा की हालत ठीक नहीं थी। बुखार इतना तेज था कि हाथ लगाने पर महसूस हो रहा था जैसे आग को छू लिया हो। इसलिए मैंने घबराहट के आलम में अम्मा से कहा, अम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने परेशान होते हुए अम्मा से कहा तो अम्मा ने हल्के से मुस्कुराकर बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कहा, नहीं नहीं आयशा, बुखार नहीं है, बस काम करके जिस्म गर्म हो गया है। मैं कुछ आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम परेशान ना हो। अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए आंखें बंद कर ली,
लेकिन मुझे बेचैनी लग चुकी थी और ऐसा लगता था जैसे मेरे शक की तस्दीक हो गई है। जब अम्मा ने मेरी इस बात को हवा में उड़ा दिया तो मैं बुआ जान के पास चली आई और जब उन्हें अम्मा की सेहत के बारे में बताया था वो खुद भी बहुत परेशान हुई और फौरन मेरे साथ घर आ गईं। अम्मा की हालत और ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और बार बार बुखार की शिद्दत की वजह से गनूदगी में जा रही थी। ताहम बुआ जान ने अम्मा के सर पर पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी और मुझे कहने लगी कि तुम एम्बुलेंस को बुला लो, हो सकता है तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाना पड़े। अस्पताल का नाम सुनकर ही मेरा दिल खौफ खा गया था और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई और खौफ के मारे अम्मा के चेहरे को देखने लगी। मुझे भूल ही गया कि मुझे एम्बुलेंस को बुलाना था। मैं सिर्फ अम्मा का चेहरा देखे जा रही थी। न जाने अम्मा को क्या हो गया है, अम्मा ऐसी क्यों हो गई। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे और दिल में अम्मा के बारे में सोचने लगी। बुआ ने दोबारा मुझे आवाज़ दी और तेज लहजे में कहा, आयशा जाकर उसको फ़ोन करवाओ, तुम्हारी माँ को इस वक्त अस्पताल की ज़रूरत है। बुआ ने जब चीख कर कहा तो मैं फ़ौरन बाहर की तरफ भागी और बराबर वालों के घर चली गई। उन्हें अम्मा की हालत के बारे में बताकर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करवाया और फिर दौड़ते हुए घर वापस आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी अपनी जान सूली पर अटक गई हो। माँ का ख्याल हर बात पर हाजिर था। मैं सिर्फ अम्मा को सेहतमंद और तंदुरुस्त देखना चाहती थी। इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं बुआ के साथ मिलकर अम्मा को अस्पताल लेकर आ गई। डॉक्टर ने उन्हें फ़ौरन इमरजेंसी में दाखिल कर लिया और उनका इलाज शुरू हो गया। मुख्तलिफ टेस्ट हुए। ये तो सरकारी अस्पताल था, लेकिन फिर भी टेस्टों के लिए भारी रकम की ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वो जमा करवा दिए और बाकी के लिए डॉक्टर से वक्त ले लिया। लेकिन डॉक्टर का यही कहना था कि टेस्टों के लिए जितनी भी रकम चाहिए वो सब आपको देनी होगी। अम्मा के मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हो रहे थे और मुझे इसी बात की परेशानी थी कि आखिर इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं। अम्मा तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। इसी बात की परेशानी मेरे चेहरे से जाहिर हो रही थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। शुरू में जो टेस्ट हो गए उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना था कि अम्मा को शायद जिगर का कैंसर है, जिसकी बदौलत उनकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने तो जैसे मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा को इतना बड़ा मसला होगा, उन्हें इतनी बड़ी बीमारी होगी। मैं बेइख्तियार रोने लगी और डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लें। आप चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लें, लेकिन मेरी अम्मा को बचा लें। डॉक्टर मुझे तसल्ली देता हुआ अंदर चला गया, लेकिन उसके ये अल्फाज कि अब दुआ करें कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे दिल में जैसे गड़ कर रह गए थे। और फिर नर्स ने आकर जब मुझे इखराजात की एक पर्ची दी तो मैं हैरत और खौफ भरे चेहरे के साथ उसका चेहरा देखती रही। और फिर मैं जो शाम से यहाँ पर आई हुई थी, आधी रात के वक्त इधर से पैसों का बंदोबस्त करने के लिए निकल खड़ी हुई। मैंने वक्त भी नहीं देखा और बरसती हुई बारिश भी नहीं देखी। बुआ को अम्मा के पास छोड़कर मैं वहाँ से निकल आई। हालांकि बुआ ने कहा भी कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सुबह होने दो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और बाहर आ गई। वो तो शुक्र है कि अस्पताल से मुझे एक छतरी मिल गई थी, वरना शायद इस बारिश में यूं ही भीगती जाती। मेरा इरादा उन बेगम साहिबा के पास जाने का था जहाँ पर अम्मा काम करती थी। मैं उनसे कर्ज मांग लेती और सारी जिंदगी उनकी खिदमत करती अगर मेरी माँ ठीक हो जाती। इसलिए मैं अस्पताल से पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। आंसू की झड़ी लगी हुई थी और बारिश भी तेजी से बरस रही थी। अचानक इस बारिश में सामने से आती हुई तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चुंधिया कर रख दिया और फिर उसमें से एक चेहरा जाहिर हो गया। वो चेहरा एक जिनसात का था और उसके अल्फाज ने जैसे मेरे दिल पर एक मरहम रखने का काम किया। अब मैं काफ़ी हल्की हो गई थी। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल का बोझ बहुत कम हो गया था और मैंने सोच लिया था कि इस मुसीबत में से भी इसी तरह निकलना है जैसे कि मैं बाकी मुसीबतों से निकलकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे हिम्मत रखनी है और अपनी हिम्मत को बनाकर फिर मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। उस जिनसात के अल्फाज न जाने कैसी ताकत रखते थे जो मेरे अंदर एकदम इतना ज़्यादा सुकून फैल गया और फिर मैं इसी तरह बेगम साहिबा की तरफ चली गई। बेगम साहिबा को जब मैंने माँ की हालत और उनकी बीमारी के बारे में बताया तो वो भी सुनकर बेहद परेशान हुई। ताहम कहने लगी कि मैं इतनी ज़्यादा तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अपने भी हालात कुछ इसी तरह के जा रहे हैं, लेकिन जितना हो सका तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर बेगम साहिबा अंदर से गईं और 10,000 लाकर मुझे पकड़ा दिए। वो रकम तो बहुत कम थी।
अम्मा का इलाज और टेस्टों के लिए लाखों रुपया चाहिए था। 10,000 पकड़कर मैं बेगम साहिबा की शक्ल देखती रह गई। उन्होंने मुझसे नजरें चुराई और कहने लगी, आयशा अभी मेरे पास यही है, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और रकम भी दूंगी, तुम दोबारा चक्कर लगा लेना। बेगम साहिबा ने जब ये कहा तो मैं खामोश सी हो गई और वहां से निकल आई। मुट्ठी में भींचे हुए वो पैसे मुझे मजीद परेशानी में मुब्तला कर रहे थे। मेरी वापसी भी इसी तरह हुई थी। मैं बेहद रो रही थी। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ परवाह थी तो अपनी माँ की सेहत और उसकी बीमारी की। वापसी पर जब मैं आ रही थी तो उसी रास्ते पर फिर से मुझे वो जिन्सात मिला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हुआ, तुम अब फिर से रो रही हो, क्या तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? उसने मुझसे अपनायत और मोहब्बत से पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझसे जो मुमकिन हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस जिन्सात की बात से मुझे ज़रा तसल्ली हो गई और वो मेरे साथ ही अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो मुझे समझाता आया था और यही कहता आया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बेहतर हो जाएगी, हिम्मत बनाए रखना, अगर उनके सामने तुम रोगी तो फिर वो भी हिम्मत हार जाएंगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जिन्सात की बातों में न जाने कैसा असर था और उसके लहजे की तासीर थी या उसके लफ्ज़ों का मरहम था कि मैं एकदम मुतमईन सी होती चली गई। अम्मा के पास जब मैं पहुंची तो अब वो होश में थी। बुआ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो पैसों के बारे में दरियाफ्त कर रही थी तो मैंने मुट्ठी में बंद पैसे उनकी तरफ बढ़ा दिए। इतने कम पैसे देखकर बुआ का भी दिल बुरा हुआ और कहने लगी, बस बेगम साहिबा ने सिर्फ इतनी मदद की है, अरे तुम्हारी माँ ने उसकी इतनी बरस खिदमत की है और उन्हें देखो, गैरों की तरह सिर्फ चंद पैसे पकड़ा दिए, आजकल में इनका क्या आता है। बुआ अपनी ही कहे जा रही थी और फिर उनकी एकदम उस जिन्सात पर निगाह पड़ी तो कहने लगी, ये कौन है? मैं अभी तारुफ करवाने ही लगी थी कि वो बोल पड़ा, कहने लगा, मैं अली हूँ और मुझे पता चला है कि माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उनके इलाज की गर्ज से यहाँ पर आया हूँ, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। उसने जब ये कहा तो बुआ की आंखें चमकने लगी और वो बेइख्तियार उन्हें दुआएं देने लगी और कहने लगी, तुम्हारे जैसे जवान इतनी नेकी का जज्बा रखते हैं और जिस तरह तुमने इस बेचारी औरत की मदद करने का सोचा है, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर अजर देगा। वो वहाँ से झोलियाँ उठाकर दुआएं दे रही थी जबकि मैं अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा ने हल्का हल्का होश में मुझे मुखातिब किया था और मैं उनके साथ लगकर बैठ गई। उनका हाल चाल पूछा तो उन्होंने आहिस्ता से सर हाँ में हिला दिया, ताहम इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और कान में कहने लगी, बेटा अपना ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुमने रोना नहीं है, हिम्मत रखनी है। अम्मा के ये अल्फाज मेरे सारे जिस्म को सर्द कर गई और ऐसे लगा जैसे खून का एक कतरा भी बाकी न रहा हो। मैं बेहद परेशान हो गई थी, लेकिन क्या करती, अम्मा की जो हालत थी वो साफ दिखाई दे रही थी। मैं एकदम वहाँ से उठी और बाहर आकर बेइख्तियार रोने लगी। वो जिन्सात मेरे पीछे ही आ गया और मुझे तसल्ली देने लगा। उसका कहना था कि अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी माँ को कैसे हौसला होगा, वो किस तरह हिम्मत रखेंगी। उन्हें सिर्फ तुम्हारी परेशानी है और तुम्हारी परेशानी का ख्याल करके वो अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लेती हैं। तुम ये सब मत करो। उस जिन्सात की तसल्ली देने पर मैं शर्मिंदगी सी महसूस करने लगी। वाकई अम्मा को मेरी परेशानी थी। एक अकेली लड़की को किस तरह की मुश्किलात का सामना हो सकता है, अम्मा ये बात अच्छी तरह से जानती थी। और फिर हम तो बचपन से ही बहुत सख्त हालात देखते आए हैं। इसी वजह से तो अम्मा परेशान थी कि कहीं मेरे साथ फिर से कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई गलत ना हो जाए। मैंने अपने आंसू पोंछे और उस जिन्सात की तरफ देखा और कहा, नहीं अब मैं नहीं रहूँगी, बल्कि अम्मा के लिए दुआ करूँगी और मुझे उम्मीद है कि अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैंने उस जिन्सात से जब ये कहा तो वो कहने लगा, अरे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी तरह इंसानों के काम आता हूँ और वैसे भी तुम्हें तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे पीछे नहीं हटूंगा। उसकी बातें मुझे हैरान करती थी और अब भी मैं टुकर टुकर उसकी शक्ल देखने लगी। ताहम मैं उठकर फौरन अम्मा के पास चली गई और अम्मा को हिम्मत और हौसला देने लगी।
अस्पताल में अम्मा को 3 दिन रखा गया और डॉक्टर ने कहा कि चूंकि अम्मा को जिगर का कैंसर है, इसलिए उन्हें अब एक लंबे और मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है। वो तो शुक्र है कि अभी कैंसर इब्तदाई स्टेज पर है, लेकिन इलाज और मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी दवा खाने से वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर से मैंने सब कुछ समझ लिया था और डॉक्टर ने अम्मा को 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया। लाखों का बिल बना था, लेकिन मुझे नहीं खबर कि उस इंसान ने वो बिल कहाँ से अदा किया। दवाइयाँ भी लेकर घर तक देकर गया था। अब मैं उसकी बेहद मशगूर थी और जब अम्मा ने मुझसे पूछा कि वो कौन है, तो फिर मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मा सुनकर बेहद हैरान हुई और कहने लगी, आयशा, क्या वाकई जिन्नात इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारी मदद करने के लिए खुद को दांव पर लगा दें? उन्होंने सोचते हुए मुझसे पूछा तो मैं बेइख्तियार हाथ में सर हिला दिया और कहा, अम्मा, अली को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जिन्नात बहुत अच्छे होते हैं और हमारे लिए तो अली एक रहमत का फरिश्ता साबित हुआ है, जिसने हमारी इतनी मुश्किलात को दूर कर दिया। अम्मा के साथ मैं अभी ये बात कर रही थी कि बुआ भी चली आई। बुआ को भी अम्मा की फिक्र रहती थी और वो दिन में कई चक्कर लगाती थी। मैं उठकर बुआ के लिए चाय बनाने आ गई। घर पर अब काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। राशन का बहुत मसला था और ये बात मैं अम्मा से नहीं कह सकती थी। उन्हें क्या बताती कि घर पर खाने के लिए कुछ नहीं। अब क्या करें, अम्मा को मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अम्मा की जगह पर उन बेगम साहिबा के घर पे काम के लिए चली जाऊंगी। और फिर जब अम्मा को अपने इस फैसले पर आगाह किया तो वो बेयकीनी से मेरी शक्ल देखने लगी। ताहम मुझे कहने लगी, नहीं आयशा, ये ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे मामले में मुझे कितनी परेशानी का सामना रहता है, इसलिए ये मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर काम करो। ये ना हो कि कल कलां को कोई तुमसे बदतमीजी करे तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अम्मा ने जब ये कहकर मना कर दिया तो मैं उन्हें बेइख्तियार बता गई कि घर पर राशन खत्म हो गया है और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं काम करूं। आप अब इस उम्र में इस बीमारी की हालत में काम नहीं करेंगी। मैंने अम्मा को आगाह करते हुए साफ मना कर दिया, जबकि वो इस बात पर मुझसे नजरें चुरा गईं। शायद उन्हें शर्मिंदगी हुई थी या क्या था, लेकिन बहरहाल अम्मा इसके बाद कुछ नहीं बोली। और फिर अगले ही दिन मैंने बेगम साहिबा से जाकर बात कर ली और काम पर आने का कहा। बेगम साहिबा ने खुशदिली से हामी भर ली, क्योंकि अम्मा ने इतने साल उनके साथ काम किया था तो उन्हें अम्मा पर मुकम्मल भरोसा था और मैं उसी माँ की बेटी थी, इसलिए बेगम साहिबा ने मुझे काम देने में कोई तकल्लुफ नहीं किया। घर आकर अम्मा को जब बताया तो बजाय खुश होने के अम्मा रोने लगी और कहने लगी, आयशा, मैंने तो ये नहीं चाहा था कि मेरी बीमारी तुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दे। तुझे मैंने बरसों से संभाल कर रखा है और तू इस तरह वहाँ काम करने जाएगी तो ये सोचकर मेरी क्या हालत होगी, मैं तो और बीमार हो जाऊंगी। अम्मा ने बड़ी नाउमीदी और परेशानी से मुझे ये कहा, जबकि मैंने उनसे कहा, अम्मा, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त और हालात बदल जाएंगे, एक बार आप ठीक हो जाएं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने अम्मा का हाथ थामकर उन्हें तसल्ली दी, जबकि अम्मा के चेहरे पर फैले हुए फिक्र और परेशानी को मैं बहुत अच्छी तरह देख सकती थी, लेकिन फिलहाल उनसे नजरें चुराना ही बेहतर था। अम्मा का इलाज चल रहा था और मैंने अब बेगम साहिबा के पास काम करना शुरू कर दिया। काम काफ़ी होता था, मुझे कई घंटे लग जाते थे। ये था कि शाम को अक्सर घर आते बेगम साहिबा खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती। इसके अलावा अम्मा के लिए फल और दूध भी मुझे दे देती। मैं उनकी बेहद मशहूर होती, क्योंकि ये फल दूध ही अच्छे खासे महंगे होते हैं और वो उसी में ही मेरी अच्छी खासी बचत करवा देती हैं। अम्मा का इलाज चल रहा था और वो अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन एक दिन फिर अम्मा की तबीयत बिगड़ गई और तकलीफ के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की बिगड़ती हुई हालत ने मेरे हाथ पैर फुला दिए। मैं उस वक्त काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब अम्मा की बिगड़ती हालत देखी तो फौरन बुआ को बुला लाई और बुआ ने जब आकर अम्मा को इस तरह तड़पते देखा तो फौरन अस्पताल ले जाने के लिए कह दिया। मैं खुद भी यही समझ रही थी कि अम्मा को अब अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसलिए फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अस्पताल के लिए निकल खड़े हुए। लेकिन रास्ते में ही अम्मा की हालत ख़राब होती जा रही थी और मैं उन्हें देख देख कर रोने लगी थी। खुदा खुदा करके अस्पताल आया, लेकिन अम्मा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। न जाने उन्हें कैंसर ने मारा, उनकी तकलीफ़ ने मारा, या फिर मेरे घर से निकलने की अज़ियत ने मार डाला। जो भी था, अम्मा ख़त्म हो गई और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। पहले अब्बा और अब अम्मा का इस तरह मेरी ज़िंदगी से चले जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा खला बन गया था।
मुझसे ये सदमा संभाला नहीं जा रहा था और मैं जैसे दिन ब दिन अंदर से खत्म होती जा रही थी। लेकिन मुझसे भी अब जिंदा नहीं रहा जा रहा था। मैं रोज अपने आप को मारने का सोचती और एक दिन इसी तरह खामोशी से घर से निकल आई। हालांकि बुआ मेरा पहरा हर वक्त देती थी, लेकिन फिर भी मुझे आज मौका मिल गया और मैं चुपचाप घर से निकल आई। मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। अब्बा और अम्मा के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं रहा था। मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। चुपचाप सड़क पर चलती जा रही थी कि अचानक सामने से मुझसे आकर कोई टकराया। मैंने एकदम सर उठाकर देखा तो वो अली था। उससे यूं अचानक अपने सामने देखकर मैं बेहद हैरान हुई। वो आज एक अरसे के बाद मेरे सामने आया था, वरना तो उस दिन के बाद दोबारा नजर ही नहीं आया। उसे तो शायद अम्मा की मौत का भी इल्म नहीं। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई अपना मिल गया हो। बेइख्तियार आंसू मेरी आंखों से बहने लगे और मैंने उससे कहा, अली, अम्मा गुजर गई, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने ये अल्फाज कहते हुए बेइख्तियार अपना सर उसके सीने पर रख दिया और वो मुझे दिलासा देने लगा। मुझे भूल गया कि वो एक जिन्सात है, मुझे भूल गया कि वो एक खैर है। मुझे सिर्फ याद था तो इतना कि उसने मेरी मुश्किल में मेरी मदद की थी और मेरा साथ दिया था। अली ने मुझे बहुत हौसला दिया और हिम्मत दी। ताहम वो कहने लगा कि तुम इस वक्त इस हालत में कहाँ जा रही थी। उसने जब मुझसे ये पूछा तो मैं उससे नजरें चुराने लगी। मैं उससे क्या बताती कि मैं कहाँ जा रही थी। अगर मैं उसे सच बता देती तो यकीनन वो मुझसे बहुत खफा होता। मैंने बस उसे यही कहा कि अम्मा की याद आ रही थी तो इसलिए घर से निकल आई। दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे जवाब पर उसने बड़ी गहरी नजरों से देखा तो मैं नजरें चुराने लगी। मुझे पता था कि उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया। वो मेरे दिल की हालत जानता है। उसे खबर थी कि मैं क्या करने जा रही थी। ताहम उसने मुझे कुछ भी नहीं जताया और कहा कि तुम घर जाओ, मैं 1-2 दिन में तुमसे मिलने आऊँगा और अब तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। उसके कहने पर मैंने सर हिला दिया और वापस घर की तरफ मुड़ आई। लेकिन अम्मा की याद इसी तरह से हावी थी और मुझे घर जाने से बहुत खौफ हो रही थी। मैं बाहर जाकर क्या करती? मेरी माँ तो वहाँ थी ही नहीं। मेरा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह गया था। और फिर मुझे इस बात की उम्मीद होने लगी कि शायद अली आकर मेरी मुश्किलात को दूर करेगा। मैं आजकल काम पर भी नहीं जा रही थी। कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं करता था। और फिर 3-4 दिन के बाद अली मुझसे मिलने के लिए आया। उसने मेरी और घर की हालत देखी तो बेहद परेशान हुआ। कहने लगा, क्या तुम कुछ खा पी नहीं रही हो? क्या तुम इसी तरह रहती हो? अली ने मुझसे पूछा तो मैंने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ, इसी तरह ही रह रही हूँ। मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं करता। मैं मर जाना चाहती हूँ। अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले अब्बा को छीन लिया और अब अम्मा भी चली गई। इस भरी दुनिया में अकेली मैं क्या करूँगी? मैंने अली से जब ये कहा तो वो तासुब से मुझे देखता रह गया और कहने लगा, क्या तुम एक बार भी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी माँ तुम्हें इस हाल में देखती तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुँचती? अली के काटदार लहजे पर मैं शर्मिंदा सी हो गई। ताहम फूट फूट कर रोने लगी और अली से यही कहा कि अम्मा के बगैर एक पल भी नहीं गुजरता, मैं क्या करूं? लेकिन अली कहने लगा, तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आता? मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ ना। आओ हम दोनों एक नई जिंदगी की बुनियाद रखते हैं, शादी करके अपना घर बसाते हैं। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में बता दिया था और उनसे इजाज़त ले ली थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगी। अली ने एकदम अचानक से कह दिया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी भरी निगाहों से उसे देखती रह गई। ताहम उसके चेहरे पर सच्चाई थी और इस बात की उम्मीद थी कि मैं उससे इनकार नहीं करूँगी। और मैंने भी सोचने में चंद लम्हे लगाए और उसके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह वो हर मुश्किल में मेरे काम आया, आइंदा भी मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। मेरी हाँ कहने पर अली बेहद खुश हुआ और कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी। लेकिन मैंने उससे फ़ौरन जवाब दिया, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी, वरना शायद मैं 2 दिन पहले ही मर चुकी होती और आज इस घर में सन्नाटे गूंजते। मैंने ये कहते हुए मोहब्बत से अली की तरफ देखा। पहली बार मुझे वो बहुत ख़ास लगा और अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत का पता चला। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।